This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खुश माहौल है आज बड़ा खुश माहौल है. कोई विशेष बात है क्या? प्रश्न संख्या 141. 141 सर. की किस्मत बहुत बढ़िया है. सप्ताह भर में तीसरी बार इनका ट्यूशन खुल गया है. प्रश्न संख्या 141. क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे ने किसान रेल की शुरुआत की है और ये सफलतापूर्वक चल रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है? और ऐसी किसान रेलों से अब तक कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है? अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री. Answer is laid on the table of the House, sir. Sir, Speaker sir, good morning. Kisan Rail is the government flagship program, sir. First ever Kisan Rail from Devlala to Danapur. The second rail, Kisan Rail from my parliamentary constituency, Anantapur, Andhra Pradesh to Adarsh Nagar, New Delhi, sir, which is more than 2,000 kilometers, sir. The farmers are very happy, sir, that they are using Kisan Rails to market their produce. This is happened for the first time in the history of railways, sir. Kisan Rail is a game changer, sir. It is a paradigm shift. Kisan Rails are known for safe delivery and time saving, sir. I would like to know, sir, I would like to take this opportunity to thank Railway Ministry, sir, for introducing Kisan Rails, and I also thank the Ministry of Food Processing for giving 50% transport subsidy, sir, under Operation Green, sir. Sir, चलो धन्यवाद. I would like to आपने know, दोनों मंत्रियों को धन्यवाद दे दिया ना. sir, I would like to know from रेल को the, भी दे दिया. पहले वो रेल थे, अब वो रेल हो गए, खाद्यान्न हो गए. sir, I would like to know from the Thank Minister, you. sir, whether the government has any plans to reduce transport charges, as the Kisan Rail charge almost equal to the truck, sir. More than 5,128 rupees for my place to Astina, sir, New Delhi. Honorable Speaker, sir, आज मेरे 12 प्रश्न ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी का एग्जाम आज वापस देना पड़ रहा है. सर, ये कठिन एग्जाम है लेकिन. Sir, honorable member has very rightly mentioned that Kisan Rail Services is providing a very good facility to the small farmers. सर, सबसे बड़ी बात है कि अब तक 1642 सर्विसेज ऑपरेट कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है छोटे किसानों के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, वो ये किसान रेल उस विजन में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है. सबसे बड़ी बात है इसमें जो डैमेज होता था मटेरियल का, वो डैमेज बहुत कम है. मैं कई किसान भाइयों से बात किया सर, जो स्लीपर कोच हमने जो जनरल जीसी कोचेस दिए हैं, उस जीसी कोचेस में तीनों जो अपनी सीट्स है, सीट्स के ऊपर रखने के कारण डैमेज इतना कम हुआ है किसानों के लिए, इसका बहुत बेनिफिट है. रही बात कॉस्ट की जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा है, ऑलरेडी 50% सब्सिडी इसमें दी जा रही है. इसके बाद में अगर हम टोटल कॉस्ट अगर कंपेयर करें ट्रक के कंपैरिजन में, ब्रेकेजेस का, डैमेजेस का, डिले का, तो मेरे ख्याल से ये आज भी ट्रक के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव आएगी सर. Sir, second supplementary, sir. Whether the government is aware that Kisan Rails are running without Kisans. Kisan Rails have to be invariably run with special coaches to be attached, or otherwise it will be just normal goods trains, sir. इनका कंसेप्ट इस तरह से ही है कि इसमें गुड्स के लिए बेसिकली, तो इसमें किसान रेल विदाउट किसान वाली बात इसमें नहीं आती. बेसिकली ये गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी है सर. थैंक यू. श्री Srinivas Patil. Sir, thank you very much for allowing me to ask this supplementary. As I am basically a farmer, I would be happy to know from the Railway Minister whether frozen bogies have been provided to transport perishable commodities and produce, and whether the tankers are connected in Kisan Railways to transport milk and milk products, because unless until the fresh things which have been produced by farmers are in that condition only provided in the market,
they will have a good sale. Therefore, whether any thing has been done in this regard or it is likely to be done so that it will be beneficial to the farmers. Thank you, sir. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ऑनरेबल मेंबर साहब ने। सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकोर रीफर कंटेनर्स का इसमें चलन है। बेसिकली रीफर कंटेनर इस तरह का कंटेनर है जिसके अंदर रेफ्रिजरेटेड रखा जाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा जाता है। तो जैसे फिश हो गया, दूसरे जो पेरिशेबल आइटम्स हो गए, उन सब के लिए रीफर कंटेनर का यूज होता है सर। सेकंड पॉइंट मिल्क का पूछा सर। मिल्क के लिए ऑलरेडी एक अलग से टैंक की व्यवस्था है, तो रेगुलरली अमूल से बाकी दूसरे जो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है उनसे रेगुलरली मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन रेल से होता है सर। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको ज्ञात है कि किसान रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को सही दाम मिल सके और सही समय पर उपज ग्राहकों तक पहुंच सके, इस चीज को ध्यान में रख करके चलाया गया। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में खाद्यान्न, पशुधन, गन्ना, सब्जी, गेहूं, दूध, दाल, आलू में प्रथम स्थान और मक्का और धान में पूरे देश में उत्तर प्रदेश की उपज दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों से किसान रेल होकर के गुजरती है और भविष्य में क्या बदायूं को भी किसान रेल की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी क्या? स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, किसान रेल की सर्विस डिमांड पे निर्भर करती है। जहां पर भी किसान भाई अगर बुकिंग करना चाहे किसी किसान रेल के लिए तो वो इंडेंट इसमें देते हैं। तो ऑनरेबल मेंबर के क्षेत्र में अगर किसान भाइयों की तरफ से डिमांड आएगी तो हर तरीके से रेलवे उसके लिए प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 142 श्री रमेश विदुड़ी जी। प्रश्न संख्या 142। क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश के कुछ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निशुल्क 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का है, और यदि हां तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और ये सेवाएं किस तारीख तक आरंभ किए जाने की संभावना है? अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री। माननीय मंत्री जी। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानकारी भी चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई कि भारत के 28 राज्यों में से 115 जो आकांक्षी जिले हैं उन जिलों में उनको समावेश में करने के लिए पोषण, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं, खेल कूद की व्यवस्थाएं और शिक्षा की और जल, किसानों के लिए जल की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी उन जिलों में करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को गरीब आदमी तक पहुंचे, इसके लिए संचार मंत्रालय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन गरीब लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे। उसके लिए कोई ऐसी नवंबर में कैबिनेट में निर्णय हुआ कि उन सभी जिलों में आकांक्षी जिले, मेरी जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे राज्य चिन्हित किए गए हैं 4-5, उनमें से किन किन जिलों में वो ये संचार व्यवस्था के 4G की व्यवस्था मुफ्त उन गरीब लोगों में, आकांक्षी जिले हैं सर वो, उनमें 4G की व्यवस्था सरकार को करने की योजना बना रही है क्या जी? ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मेंबर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7,287 जो अनकवर्ड विलेजेस थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 5 राज्यों में, उसमें टावर की फैसिलिटी, 4G टावर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। लेकिन ये केवल अकेला प्रयास नहीं, इसके अलावा भी जितने हमारे जंगल विस्तार के क्षेत्र हैं या पहाड़ विस्तार के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में पिछले 5-6 सालों में बहुत टेलीकॉम का प्रसारण हुआ है सर। अगर हम सिर्फ संख्या देखें, 2014 में मात्र 6.5 लाख बेस स्टेशन थे। बेस स्टेशन यानी जैसे टॉर्च से रोशनी निकलती है वैसे टावर के से जो सिग्नल आता है, आज करीब 23 लाख बेस स्टेशन हो गए सर। धन्यवाद। सेकंड, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं सर, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी की अनेकों इस प्रकार की योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और ये जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्टों में जो गरीब लोग रहते हैं वो वहन नहीं कर सकते सर इसका चार्जेस वगैरह, 4G वगैरह का। आपको जवाब दे देना तो लिखित सर बात। निवेदन मेरा ये है कि उन बाकी के राज्यों में, ये तो 4 राज्यों के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, क्या योजना जल्दी है कि ऐसे और गरीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों में वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर
और उनको ऑनलाइन यूटिलाइज करके उनका लाभ उठा सकते हैं। लोगों को जानकारी मिलती नहीं है जी योजनाओं की। जितनी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए लागू की हैं, वो अब ये स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए का लोन था सर, 10,000 गरीब लोगों के लिए तक जी सर। अब वो नेट के माध्यम से अगर आजकल लोग फेसबुक सोशल मीडिया यूज करते हैं, ऐसी क्या अन्य जिलों में भी कोई योजना पहुंचाने की योजना है तो वो कब तक है सर? सर, अन्य जिलों में वाईफाई एक्सेस के लिए करीब अब तक 50,620 वाईफाई हॉटस्पॉट्स देश भर में स्थापित हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात सर, बीएसएनएल ने घर घर में फाइबर पहुंचाने की योजना के तहत अब तक 17,81,000 घरों में बीएसएनएल ने फाइबर पहुंचाया है सर। तो हर तरह के प्रयास हो रहे हैं जिससे कि देश के प्रत्येक घर में इंटरनेट की एक अफोर्डेबल सुविधा मिले सर। श्री सरदिना जी। Talking about 4G when the world has already started 5G. We are very happy. But whenever I go to my constituency, especially in rural areas, the connectivity is so bad. We are talking of Wi-Fi. Normal connectivity is not there. When schools and colleges are being conducted online, I would bring to the notice Honorable Minister, please do something that the normal connectivity is there in the state of Goa. Sir, honorable member has asked a question about the state of Goa. Sir, I would like to just mention that when the scaling up of telecom services has happened at such a rapid scale, from just about 6.5 lakh BTS base stations in 2014 to 23 lakh, there will be challenges faced by the industry. And secondly, the cost of data has reduced dramatically from about 226 rupees per GB to about 20 plus odd rupees per GB. So that is the change which has happened in the industry. Regarding the specific points, honorable member can any day meet me and we can find out the solutions to it, sir. श्री दयानिधि मारन जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, it's quite a similar question. When the former telecom minister had assured in this house that 4G services and 5G services will be provided to BSNL and MTNL, till date, we have seen no signs of BSNL or MTNL starting 4G services. And in fact, they have been losing customers to Jio, which is supported by the government, where the Prime Minister himself was a poster boy in the photos advertised. Sir, I would like, it is, sir, yes, Mr. Goyal ji, yes. How can a Prime Minister post fake? No, this is it. It is, I'm stating a fact. I'm stating a fact. What is this, sir? Let me give the notice. What is this? Yeah, it is unfair. So let me complete my question, sir. Let me complete my question. Oh, mister, come on. Sir, You set up judges. Sir, the entire corruption took place during his regime. How can you call me corrupt? How can you call me corrupt? How dare you call me corrupt? How dare you? How dare you, man? How dare you? How dare you? So he called me corrupt. He called me corrupt. He called me corrupt. He called me corrupt. It should be taken off, sir. You cannot. I got a clean sheet. How dare you? How dare you? How dare you? Sir. क्वेश्चन नंबर। माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज सिट डाउन प्लीज। माननीय प्लीज एक मिनट प्लीज कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरा प्रश्न में आप सबसे आग्रह है, मैं पूर्व में भी कई बार आग्रह कर चुका हूं, प्रश्न में कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, प्रश्न शॉर्ट में पूछे, उस संबंधित जो प्रश्न का है उसके दायरे में पूछे। मैंने पूर्व में कहा था कई बार तेलंगाना का प्रश्न है और आप मध्य प्रदेश के बारे में पूछने लग जाते हैं। अगर कोई राज्य का विषय हो तो राज्य के विषय से संबंधित, लेकिन पॉलिसी क्वेश्चन के एक मिनट, हाँ हमें एक मिनट में बात पूरी बात। क्वेश्चन में पॉलिसी मैटर के बारे में पूछा जाता है ज्यादातर संसद के अंदर कि पॉलिसी मैटर क्या है सरकार ये। हाँ, ओके Sir, let him ask the question we have about whether he has asked. संसदीय कार्य मंत्री जी, That question he will reply. Why he should try to allege? माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।
माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। Sir, आपके भावार्थ को समझिए माननीय मंत्री जी। honorable member has asked the question about BSNL. Honorable member has asked the question about BSNL 4G services. Very clearly, sir, BSNL is, sir, you asked your question. Now you have to listen to the reply also. You cannot just ask the question and. मंत्री जी, आप तो मेरे रिकॉर्ड में जाएगा। Sir, no. Sir, honorable member has asked the question about BSNL 4G services. Sir, people who have a very different past are trying to put allegations. I would like to understand, sir, what is the reason why BSNL went into such a bad situation? Who are responsible for that, sir? Sir, who is responsible for taking our telecom industry to that kind of situation where the whole world is looking at this? Today, sir, BSNL is coming out of the difficult situation only because Prime Minister Modi ji has taken very, very firm steps on having our own indigenous 4G. We are the first time a government is taking steps to develop our own indigenous 4G and 5G technology, which will be our own 4G, 5G core. We will prove to the world, sir, that Indian engineers, Indian scientists, they are going to develop the best core technology, best radio technology, where our products will go out to the world, sir. Not like the situation when some of our friends, they almost killed the organization because of their own actions. Question number 143, श्रीमती साजदा अहमद, आपकी सदस्य हैं। Question 143. प्रश्न संख्या 143। क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में कुपोषण की स्थिति पर खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव का आंकलन किया है, और यदि हां तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? पीयूष गोयल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, The minimum nutritional मैं चेक कर requirement लूंगा सब चीजें, ऐसी is कोई चीज नहीं है। 2400 kilocalories per day and 2100 kilocalories आप बैठ जाइए। per day for rural and urban areas. The food given by government to poor people is not diversified, and they eat more cereal compared to protein and fats. The result is that per capita consumption might touch the targeted recommended calories, but in the absence of protein and essential fats, the families reported higher malnutrition, and nation is suffering with hidden hunger. Therefore, calorie consumption cannot be the sole determinant of hunger. My question is, to address the issue of hidden hunger, whether the government proposes to strengthen and enlarge the food basket to include millets, pulses and fats in PDS. Proposal, we are going strictly as per the National Food Security Act. However, in view of COVID, in the last 19 months, the government has given 5 kilos of free food grain to 80 crore Indians across the country. Free of charge, 5 kilos every month. And in that, we have spent and will be spending up to March over 2.5 lakh crore rupees. I think it's the world's largest food security program. In addition to that, states are free to supplement any additional pulses or any other millets that they may like to give. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहती हैं? I wanted to know the details state-wise, sir. Reference has been given on the answer. However, the important thing to note is that no separate analysis is done of the correlation of food being provided under NFSA and malnutrition. Malnutrition is an outcome of several aspects, as you rightly pointed out, Madam, in your supplementary. And therefore, all of us, the nation collectively, will have to work towards finding solutions to this. Sri Uttam Reddy ji. Speaker, sir, through you, I wish to ask the Minister for Food and Public Distribution, in view of the alarming situation in Telangana now,
because of the failure of the Government of India and the state government in rice procurement, there are a large number of paddy farmers committing suicide. Now you saw till the other day, the TRS MPs did a drama here and walked out. Sir, in August, when the Food Corporation of India agreed to procure 40 lakh tons of rice from Telangana, the paddy has come into the market from October. Even till today, the Food Corporation of India has not procured even half the quantity. इन्होंने पूछा है कुपोषण के मामले में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है? No, sir, he's talking about malnutrition. I talk about rice procurement, sir. मैंने rice procurement, sir. आग्रह किया था आप लोगों को. Rice procurement, sir. Okay, sir, I'll complete, sir. Thank you, माननीय मंत्री जी. वैसे तो प्रश्न का कोई संबंध नहीं है इस विषय से, पर क्योंकि ये गलत प्रचार बार बार करा जाता है, मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया है तेलंगाना के लिए। लेकिन आप याद रखें कि तेलंगाना डीपीसी स्टेट है, यानी फूड कॉर्पोरेशन डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करता है, राज्य सरकार पैडी प्रोक्योर करती है, उसको राइस में कन्वर्ट करती है और फिर वो राइस फूड कॉर्पोरेशन को देती है। राज्य सरकार को अभी तक शायद 4 या 5 एक्सटेंशन दे चुके हैं कि वो और ज्यादा हमें राइस दे सके। फिर भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी संख्या में परमिशन देने के बाद भी आज तक जो अलाउ किया है राइस खरीदने के लिए, पारबॉइल्ड राइस खरीदने के लिए, आज तक राज्य सरकार विफल हुई है वो देने के लिए। फिर भी एफसीआई तैयार है, हमने अभी भी उनको एक्सटेंशन दे रखा है। वो जिस स्पीड पे वहां से तेलंगाना से आते हैं उस स्पीड पे ही एफसीआई खरीद सकती है। पैडी प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है। प्रद्योत पोरोदोलाई जी, आपका सही जवाब मिल गया। आप जो सुनना चाहते हैं बैठ जाइए। सर, डिस्ट्रैक्टेड फैक्ट बोल रहे हैं हाउस में मंत्री जी, वो दिक्कत है। हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आप इनका जवाब मत दीजिए मंत्री जी, आप इनका जवाब मत दीजिए। इनका कोई आरोप नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ये आप चेयर को डायरेक्शन मत दिया करो कि मैं डायरेक्शन दूं। प्लीज बैठिए माननीय सदस्य। Sir, coming to food security schemes, and I would like to know for a policy matter, existing policy matter, sir, all the free rice, whether it's Garib Kalyan Yojana or Food Security Act schemes, all the rice, huge consignments are sent to the northeast from North India, incurring heavy transport expenditure. Sir, I wanted to know from the Honorable Minister, sir, Assam is a paddy surplus state. Why can't the paddy be procured and rice be procured, avoiding this transport expenditure, and that should be distributed for under the food security schemes for the benefit of the poor and needy people in the northeast. Sir, again, this question is not related to this subject, but I'll be happy to discuss this with the honourable member if he comes with more details. But I can assure the honourable member that we are procuring from Assam. We have in fact increased the procurement from Assam, and we'll be happy to take more. We'll discuss this. But since it's not related to this subject, I don't have this specific data over here. श्री रतन लाल कटारिया। थैंक यू स्पीकर सर। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगा कि क्या ये बात सही है? आप मेरे माध्यम से जानो, उधर से मत डालो। सर, आपके माध्यम से ही मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो महामारी आई थी और उसमें करोड़ों लोग मरे थे, तो 50 लाख के लगभग बीमारी से मरे, लेकिन कुपोषण के कारण, भूखमरी के कारण 50 लाख लोग मरे थे। लेकिन हमारे देश में अब कोविड के दौरान एक इतना बड़ा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का कार्यक्रम चला के और इतने करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा के, जिसकी सराहना यूएनओ ने भी की है, WHO ने भी की है, क्या इस दिशा में सरकार ने कुछ बेहतरीन कार्य किए हैं
और उनका वर्णन क्या है उसको बताने की मंत्री जी कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात का अनुमान कई जगह से मिलता है, कई जगह पे ऐसी रिपोर्टें पढ़ने को मिलती हैं कि जब स्पेनिश फ्लू 1918 में पूरे विश्व में आया था, जो आखिरी इतनी बड़ी महामारी आई थी, उस समय ज्यादा लोग भूखमरी से मरे बजाय कि जितने लोग महामारी के कारण, बीमारी के कारण मरे। इसका कोई आंकड़ा तो कोई स्पष्टीकरण दे नहीं सकते, पर ऐसे अनुमान अलग अलग देखने को मिलते हैं, पत्रकों में मिलते हैं। लेकिन भारत ने विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाने के कारण 80 करोड़ लोगों को, और वास्तव में जब मैं ये विदेश में कई फोरम्स पे, G20 पे या अलग अलग हमारी बैठकों में बात रखता हूं, तो पूरी दुनिया के विकसित देशों के भी नेता आश्चर्यचकित रहते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था 80 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के दौरान भी गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक, पहाड़ों के ऊपर या घने जंगलों में भी 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देना, पारदर्शी तरीके से देना। जब हमने इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कराई तो अनुमान आया कि लगभग अधिकांश लोगों ने ये कहा, अधिकांश यानी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, कि हमें मिला है, हर महीने मिलता है। कुछ राज्यों ने 3 महीने का एक साथ दिया, उसके हिसाब से मिला, उसका बायोमेट्रिक हुआ। ये अलग बात है कि 3-4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड नहीं किया, पर इसके अलावा लगभग 75 करोड़ से अधिक लोगों को तो वन नेशन राशन कार्ड के तहत देश में किधर भी उनकी जो 5 किलो प्रति महीने अनाज मिलने की एंटाइटलमेंट थी, वो कुछ व्यक्ति, कोई मुंबई में ले, कोई दिल्ली ले, प्रवासी मजदूरों को मिला, आधा गांव में, आधा शहर में जब काम करते हैं। इस व्यवस्था के कारण अभी हाल में 1 हफ्ते पहले मैंने देश के सभी फूड मिनिस्टर्स की बैठक की दिल्ली में, और मुझे आनंद है, यहाँ पे सभी पार्टीज अलग अलग सरकार चलाती है, सभी देश भर के मंत्री और जो मंत्री रहे आए उनके अधिकारियों ने ये बात रखी उस मीटिंग में कि भूखमरी के कारण किधर भी कोई व्यक्ति को तकलीफ नहीं आई, साधारणतः देश भर में सभी को अनाज उपलब्ध हुआ। सुप्रिया सुले जी। Thank you, sir. I'd like to thank the Honorable Minister because I think he complimented the states also for helping him in distributing. So I think the states and the central government have worked very well together in this food distribution program, and I thank the Government of India for being very kind to even my state where I represent from. You, in your reply, talked about biometric. My only suggestion to you is the distribution sphere is excellent, but biometric, sometimes what happens, there are a lot of women who are working in the farms, and sometimes biometric becomes a challenge because those fingers lines don't match, and a very deserving person doesn't get it, or an elderly person doesn't get it. So the intention is very good. We are very happy to work together. We are making improvement in malnutrition, which is actually doesn't come under your mantralaya, it comes under women and child. So I don't want to keep that focus. But is there something we can do in biometric? It's a technical issue. It's not your fault or any government's fault. Yes, incidentally, even this issue doesn't come under my ministry, but I can share with you, to the best of my knowledge, I'm not absolutely correct, but maybe Ashwini ji can supplement. For the elderly people, even in Aadhaar biometric linkage, they have given some exemptions. However, your suggestion is worth examining. I will talk to the concerned minister and ask him to examine it, and then we can discuss this further. Question number 145. 144. Manya Aध्यक्ष जी. 144. Sir is laid on the table, sir. 144 question number. माननीय Statement is laid on the table, sir. आपका नहीं है, एक मिनट 144 कर लिया, मैंने ठीक कर रहा हूँ 144। प्रश्न संख्या 144। क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या गत 2 वर्षों के दौरान बच्चों के प्रति साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है, और यदि हाँ तो सरकार द्वारा
इन पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? ख. साइबर धमकी और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे बच्चों की गोपनीयता संबंधी अनेक जोखिमों से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? और ग. फर्जी कॉलों और फर्जी मैसेजों इत्यादि को रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है? अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चौतरफा विकास कर रहा है और आपका भी मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। अध्यक्ष महोदय, गांव-गांव में इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है। कोविड-19 कोरोना काल में भी हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो कि आदिवासी जनजातीय क्षेत्र, पिछले वर्षों से बच्चों के विद्यालय में नहीं जाने का कारण ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। महोदय, इस दौरान सारे फर्जी कॉल करके पैसा मांगना, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में, गेम के बारे में इत्यादि बात कर पैसा मांगना, मैसेज कर ओटीपी के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। महोदय, इन संस्थाओं द्वारा ऑटोमेटिक कॉल या मैसेज कर, जैसे सिंपली, बायजूस, नोटबुक इत्यादि, पहले इन सभी संस्थाओं का नाम लेकर के निःशुल्क शिक्षा का प्रलोभन दिया जाता है। इन सभी संस्थाओं के नाम पर पैसा मांगकर बच्चों को परेशान किया जाता है। इसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, इसका ब्यौरा क्या है? जी, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये राज्य सरकारों के साथ सहयोग के साथ इस पे काम किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्यों के विषय है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो भी कार्यक्रम हो उसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच होनी चाहिए। इसमें केवल आईटी मंत्रालय नहीं, बल्कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इसके अलावा दूसरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इन सब ने मिलके एक कार्यक्रम किया सर, इसको क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को किस तरह से रोका जाए। सबसे बड़ा सर इसमें व्यवस्था है सर I4C, जो कि गृह मंत्रालय के तहत आती है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसमें एक पोर्टल भी चलाया जाता है और सभी राज्यों के साथ इसका एक कोऑर्डिनेशन होता है कि कहीं पर भी किसी राज्य में अगर ज्यादा क्राइम अगर कहीं से रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए सेंटर की तरफ से, तो सेंटर की तरफ से हमेशा स्टेट पुलिस को हेल्प प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सर एजुकेशन मंत्रालय ने भी CBSE के जरिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए इंटरनेट का सेफ यूज क्या हो उसके बारे में बहुत जानकारियां दी हैं और बहुत अच्छे से उसका एक प्रभाव भी हुआ है सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 67B सेक्शन, उसके तहत भी कई तरह के प्रावधान रखे गए जो कि राज्यों के साथ भी शेयर किए गए, जिससे कि वो इसमें एक्शन ले सके। तो एक ओवरऑल राज्यों के साथ प्रयास चल रहा है सर इसमें। सप्लीमेंट्री शॉर्ट में पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जहां तक कि बच्चे अपने मां के खाते से लगभग 3 लाख रुपया गेम खत्म कर दिया, इस तरह के अनेकों मामले प्रकाश में आ रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब व अनपढ़ लोगों के खाते से भी फर्जी कॉल करके राशि बैंक खातों से निकाली जा रही है। इसे तत्काल रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ऐसे में कितने साइबर अपराधियों को सजा दी गई है और कितने अपराधियों पर जुर्माना लगाया गया है, उसका विवरण क्या है? और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसको रोकने हेतु सरकार के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है, इसका विस्तृत ब्यौरा। माननीय अध्यक्ष, जैसा मैंने कहा, राज्यों के साथ मिलकर ही इसका प्रयास करना पड़ता है। ये राज्य का विषय है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो भी सहायता चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्प चाहिए, वो हमेशा प्रोवाइड की जाती है और भारत सरकार की जो भी एजेंसी की मदद जब भी कोई राज्य मांगता है, इसके लिए दी जाती है सर। श्रीमती केशरी देवी पटेल। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसित है। ये अच्छी बात है कि सरकार द्वारा साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं। मेरा अनुपूरक प्रश्न ये है कि क्या सरकार विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए साइबर क्राइम एवं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इत्यादि के बारे में उच्चतर माध्यमिक या डिग्री स्तर पर कोई कोर्स चलाने का, पाठ्यक्रम चलाने का प्रयास करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने
एक बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की कैंपेन चलाई है, जिसके तहत देश भर में छात्रों में जागरूकता पैदा हुई है। इसके साथ ही साथ जो आईटी मंत्रालय में एक संस्था है सर्टिन ने बहुत सारे क्विज कॉम्पिटिशन्स रखे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे जो इजी भाषा में, सरल भाषा में लोग समझ सके, इस तरह का मटेरियल सब जगह रखा गया है। श्री आई.बी. ईडन जी। Sir, our children are not even safe in our houses now. Sir, post-pandemic session, we have understood that there was a time when we used to keep the mobile phones, smartphones and internet accessibility away from children. But post-pandemic, COVID pandemic, we are not able to do that because my state in Kerala, in June 2020, online classes had started. There was a huge digital divide in the state. Sir, once the students started using the online platforms as educational purposes, there has been massive usage of internet, and there have been a place where a lot of cyberbullying has been happening. A lot of ways by which students are being harassed online. Sir, my specific question is there any provisions with the Education Ministry to make sure, a lot of campaign you mentioned is happening, but is there any provision where you can include this as a part of the curriculum so that there is proper awareness among students? Also, with regard to the state governments, can cyber domes be initiated with the Home Ministry to make sure cyber laws are quite weak and awareness about cyber laws between the departments, other departments are quite weak. So is there any specific instruction from your ministry to make sure that these campaigns happen and should be part of the curriculum as well? थोड़ा सा भी अगर हम साइबर लॉज को टाइट करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, हमारे सारे के सारे मेंबर्स एकदम चिल्ला पड़ते कि संविधान का गला घोंट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों के राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब हटा दिया। लेकिन सर ऑनरेबल सर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस विषय को रखना चाहता हूं। ये जो विषय है साइबर क्राइम्स और जिस तरह से बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है और जिस तेजी के साथ नए नए आयाम इसमें खुल रहे हैं, इसमें वाकई जरूरत है पूरे के पूरे समाज में एक ऐसा कंसेंसस बने कि रेगुलेशन और ज्यादा टाइट हो। इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया भर में ये विचार इस तरफ बढ़ रहा है। सर, आप बोलना चाह रहे थे दादा, आप बीच में उड़ जाते हो ना, इसलिए तो आपको मैं अलाउ करता हूं ना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 145 श्री एम गुरुमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 145 सर। प्रश्न संख्या 145। क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में चुनिंदा राज्यों में 5G परीक्षण के लिए संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है, और यदि हां तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और प्रायोगिक अध्ययन हेतु चुने गए राज्य कौन-कौन से हैं? अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री। सर, द आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। Thank you, Honorable Speaker, sir. Telecom companies have expressed concerns over the base pricing of spectrum offered for the trial phase. Would the Minister kindly tell if all experimental spectrums offered had bidders, and if there shall be any revisions in the base pricing for future auctions, sir? Sir, the base price of telecom spectrum is determined by the regulator, Telecom Regulatory Authority of India, sir. Already TRAI has issued a consultation paper. It is available in the public domain. All the stakeholders are giving their views. I'll request honorable member also to give his views on this to TRAI. As and when TRAI submits its recommendations, government will take a final call on it. माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. My supplementary question is, 5G is a new technology, different and with wider application than the previous technologies. What are the challenges that the telecom companies are facing during the trials, and what steps have been taken by the ministry to mitigate them? Sir, the biggest challenge that the telecom companies are today seeing is the amount of investment that will have to be put in for rolling out 5G technology. This is a challenge, and the government is very well cognizant of this challenge. That's why the government has already taken a very big step in terms of reforming some of the legacy issues which were
there, sir. In the last September, Honorable Prime Minister announced a very big package of reforms. There will be many more regulatory challenges that we are facing. Industry is bringing those points to us. As and when industry brings more points to us, sir, we will definitely address them, sir. Shri Manish Tiwari ji. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I wanted to ask the Honorable Minister that is it a fact that the Chinese state-owned company Huawei had requested for permission to participate in the 5G trial, and is it a fact that permission was refused by the Government of India because Huawei was deemed to be a security risk? Could the Minister kindly confirm whether both these assertions are correct or incorrect? Mr. Speaker, sir, Honorable Member has asked a very important question, sir. All of the world, looking at the geopolitical realities that we have, sir, today there is a discussion, there is a movement, there is a dialogue happening where the telecom devices, which have a serious repercussion on technology and security, technology-based security, are today being procured through a trusted source. In our country, sir, we moved ahead of the curve, and actually we decided to have a trusted source regime in which whatever equipments, whatever components, whatever systems we buy within the country for use in the country will be procured only from trusted sources. So without taking name of any particular company, sir, I would like to say that whatever procurement has happened for 5G is happening under the trusted sources regimes. Shri Saptagiri Ulka ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, before I move to 5G testing and so on, I would like to highlight that 4G mobile towers, which the government announced, is a very welcome step. And since I come from Raigad and Koraput district, I would like to ask the Honorable Minister, the list of 962 villages in Koraput and 520 villages in Raigad and 520 villages in Koraput. Can you provide the list and also give a timeline when this will be implemented? Also, sir, the Telephone Advisory Committee, which is headed by the Member of Parliament, is now defunct. So can we be involved in ensuring that the 18 months timeline which you have decided for this implementation, can the MP do the review and help assisting you so that this can be done in a smooth way? And when will the 5G be available to places like Koraput and Raigad district? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, if you permit, I'll speak in Odia. अगर आप परमिशन दे तो सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं उड़िया में बोलूं सर? उड़िया में बोल। नहीं, अभी आधे घंटे पहले बताना पड़ता है। ठीक है सर, मैं हिंदी में जवाब दे देता हूं सर। ऑनरेबल मेंबर ने जो प्रश्न उड़ीसा राजस्थान दोनों है। ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो प्रश्न पूछा है, कोरापुट, रायगढ़ ऐसे सर रिमोट एरियाज हैं जहां पर वाकई एक बहुत बड़ी गैप थी। इसी गैप को पूर्ण करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 7,287 गांव जो सैंक्शन किए हैं, जहां टेलीकॉम सर्विसेज पहले नहीं थी, अब टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए गत नवंबर में 7,287 गांवों के लिए फंड सैंक्शन किए, 6,446 करोड़ फंड सैंक्शन किए। ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है कि काम कब शुरू होगा। ऑलरेडी इसका टेंडर प्रोसेस चालू हो गया है सर, और बहुत जल्दी इसके टेंडर अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा प्रयत्न रहेगा कि इसमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि उन क्षेत्रों में वाकई सर्विसेज की बहुत जरूरत है सर। माननीय सदस्यगण, दादा आप बात सुनिए। आपको मैंने 6 तारीख को अलाउ किया सप्लीमेंट्री के लिए, मोहबा मुत्रा को 7 तारीख को अलॉटमेंट किया। अब सवाल ये कि सभी माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछ सके, इसलिए एक सप्ताह में एक व्यक्ति का ही नंबर आने दो, नए व्यक्तियों का भी नंबर आने दो। आपने 6 ने पूछा, 7 ने पूछा, लोग रोज आप पूछेंगे तो सदन में नए मेंबर को दे रहा हूं ना मैं मेंबर। मैं सब रिकॉर्ड रखता हूं मेरे पास, बिना रिकॉर्ड के बात नहीं करता हूं मैं। कोई मेरे पे ये आरोप नहीं लगा सकता कि मैं, लेकिन मेरी हाँ ये भी रिकॉर्ड है मेरे पास कि 70% सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने अपोजिशन प्रत्याशी को दिया, ये भी रिकॉर्ड है मेरे पास। आप उठा के चाहे तो मैं कभी भी आप ये भी मैं कह सकता हूं सप्लीमेंट्री। अब मेंबर ज्यादा है तो जो पार्टी जीतेगी उसके मेंबर जा रहेंगे, मौका ज्यादा मिलेगा उनको। हाँ, आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार आपका है, लेकिन अलाउ करने का अधिकार मेरा है। क्वेश्चन नंबर 146 सुमेधानंद सरस्वती जी।
प्रश्न संख्या 146। क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क क्या सरकार को बड़ी संख्या में इंटरनेट पर उपलब्ध गेम्स की जानकारी है जिनसे न केवल हमारी युवा पीढ़ी का समय बर्बाद हो रहा है बल्कि वे उन्हें जुआ खेलने यानी गैम्बलिंग का आदी भी बना रहे हैं और इनकी वजह से युवाओं एवं उनके माता पिता को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। ख क्या सरकार का विचार इन गेम्स को प्रतिबंधित करने का है? ग यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और घ यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से माननीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, करोड़ों अभिभावकों की पीड़ा मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। हमारी युवा पीढ़ी जिस प्रकार से अनेक प्रकार के गेम्स के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, वो बहुत ही एक चिंता का विषय है। अभी हमारे चूरू में एक बच्चे को मोबाइल के माध्यम से जुए की लत लगी और 3 दिन 3 रात वो सोया ही नहीं। परिवार सब मेरा एक माननीय सदस्य मेरा निवेदन है, जैसे मंत्री जी शॉर्ट में जवाब दे रहे हैं, आप भी शॉर्ट में पूछो ना। अब कहानी पूरी प्रश्नकाल में सुनाओगे आपकी एक रामलाल बच्चा ऐसा हो गया, ये तो नहीं हो सकता ना। आप पूछोगे भी जुए से बच्चे, बिल्कुल शॉर्ट में पॉलिसी मैटर पूछो आप। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन ये था कि क्या सरकार का विचार इन गेम्स को प्रतिबंधित करने का है, और यदि हाँ तो तत्व संबंधित ब्यौरा क्या है? इसके अतिरिक्त यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? ये मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रेगुलेशन एंड टैक्सेशन ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये एंट्रीज 34 और 62 स्टेट लिस्ट में आती है सर। तो इसकी संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से स्टेट्स को इसके ऊपर कानून बनाना होता है। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 4 राज्यों ने कानून बनाया है इसको ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन बेटिंग के विषय को प्रोहिबिट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। कर्नाटक ने, तेलंगाना ने, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने। इसके अलावा 2 राज्यों ने इसको लीगलाइज भी कर दिया है, सिक्किम और नागालैंड ने इसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था की है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स विषय है जिसमें राज्यों और केंद्र को मिलकर ही कुछ आगे प्रयत्न करना पड़ेगा सर। क्यों सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य? अध्यक्ष जी, मैं ये निवेदन करना चाहता था, जैसे सरकार ने पहले पोर्नोग्राफी और पब जैसे गेम्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया, क्या अन्य प्रकार के जो गेम्स आ रहे हैं उस पर भी आपका कोई प्रतिबंध लगाने का विचार है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिबंध लगाने के अधिकार सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत दिया जाता है और उसमें 5 क्राइटेरिया रखे गए जो कि स्ट्रेट अवे संविधान से लिए गए हैं। सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर या प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस। इन सब कैटेगरी में जो भी आते हैं उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत जांच होती है। जांच के बाद में किसी भी वेबसाइट को या किसी भी ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है। अगर इस तरह की अगर आएगा कोई प्रपोजल तो उस पर इसी कानूनी दायरे में एक्शन लिया जाएगा। श्रीमती रंजीता कोली, डॉक्टर विष्णु प्रसाद। Speaker sir, I really appreciate the steps taken by the government in maintaining harmony of the country. But I would like to know whether the government will be having stricter norms in doing censor for the OTP, that is Netflix and Amazon and Prime Videos, where the movies are being telecasted and also the serials are telecasted, which is creating some disharmony among the religion and the community. Thank you, Mr. Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, honorable member has raised the point which is really very, very important. All over the world, people are really worried where the entire cyber world is moving because the level of trust, because the way social media intermediaries have become all pervasive today. So the point which honorable member has raised needs a broader consensus, not only in India but across the world. We need to have lots and lots of discussion and a broader consensus throughout the society for this, sir. Shri Shashi Tharoor ji. Sir,
I had actually asked on the previous question, sir, but since you've been kind enough to give me the floor on this. ठीक है माननीय सदस्य मणिकम टेगोर जी, आपने पूछा। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, through you, I'd like to ask Honorable Minister. In his reply, he has replied that 4 states has provided laws to protect the children from the online games. Will the Honorable Minister take initiative to call all states IT ministers for a conference and decide about a uniform law across India, because it is a very serious issues on the online games. Therefore, will the minister assure the House about the actions to be taken in the future? Honorable Speaker, sir, as I said right at the beginning, sir, this is a constitutional arrangement in which the power is basically with the state governments. If there is a demand from the state governments for having a uniform law, because the matter actually concerns everybody, and cyber crimes, online gaming, there is no boundary. There is no boundary. Anything can, it is all pervasive. So that's why if a demand comes from the state governments, definitely it will be considered. प्रश्न संख्या 147। प्रश्न संख्या 147। क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कॉटन यान की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और इसकी कीमतों में दिन ब दिन उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसके कारण वस्त्र उद्योग में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है, रोजगार कम हो रहा है और कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की आय कम हो रही है और सरकार की आय भी कम हो रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का विचार कॉटन यान की कीमतें निर्धारित करने तथा इसकी कीमतें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है, जिससे वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिल सके और देश भर में विशेषकर तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बटूर में 1 करोड़ विद्युत करघा और हथकरघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान किया जा सके? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? दर्शना विक्रम जरदोश, वस्त्र राज्य मंत्री। पीयूष गोयल, वस्त्र मंत्री। डॉक्टर TR पारिवेंतर, बड़े शिक्षाविद हैं, माननीय सदस्य, बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 147। माननीय सदस्य रख दिया गया। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, प्लीज मेंबर allow you question supplementary. Sir, where the central government has planned to establish the price monitoring authority to control the price of raw materials, which is the urgent and foremost need of the hour to save the textile industry across the country, particularly in Tirupur, Erode and Coimbatore in Tamil Nadu. सर, कल ही त्रिपुर और कोयम्बटूर के स्टेक होल्डर से बात हुई। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल मंत्रालय में पीयूष जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने कई सारे स्टेक होल्डर से बात की। इसमें कॉटन की पूरी वैल्यू चेन के स्टेक होल्डर से जब बात हुई, 4 घंटा चर्चा हुई, जहां स्पिनर भी थे, प्रेसिंग वाले भी थे, ट्रेडर्स भी थे, और उनके साथ में उनको बताया गया कि कॉटन इंडस्ट्री जो है वो पूरी वैल्यू चेन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा किसानों को कॉटन के प्राइस मिले हैं और कॉटन यान जो है वो इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और उसके साथ में जब अब कोरोना के बाद में मार्केट खुल गई है, ओपन मार्केट हो गई है, तो ज़्यादा डिमांड भी होने लगी है। लेकिन हमारे किसानों के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, सबसे ज़्यादा कॉटन के ऊपर जो आज MSP से भी ज़्यादा उनको प्राइस मिल रही है, जो उनकी आय दोगुना करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा है, तो ये वैल्यू चेन की बात है, सब लोगों को एक साथ में मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय मेंबर। सर, I like to know from you, through the minister, whether any plan to reduce the GST from the existing 5% to 12% for handloom textiles, which is already in severe crisis due to the COVID pandemic, market contraction and other natural calamities in Tamil Nadu. Will the government take any remedial measures to save the textile आप बेटी मंत्री जी वो प्रश्न पूछ रहे हैं अभी। To save the textile industry crisis.
सब लोग जैसे जानते हैं कि जीएसटी के रेट तय करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल बनाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और सचिव के साथ में सब लोग तय करके ये प्राइस तय करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री हमेशा बातचीत से समस्या का हल करती है। सभी जगह से कई डिमांड आ चुकी है और पीयूष जी के साथ मिलकर हम लोगों ने काफी स्टेक होल्डर से बात भी की है। आने वाले समय में जो भी इंडस्ट्री का भी स्टैंड होगा वो क्लियर हो जाएगा। ऑनरेबल टी.आर. बालू जी। Sir, textile industries in Tamil Nadu are the second largest employment provider. Moreover, it provides 33% of the business to India as far as textile garments and fabrics are concerned. My problem is, of late, the prices of cotton and yarn and increased multifold, thereby proportionally the fabrics and garments have increased, and totally textile industry are in shambles. So that is why the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter to Government of India to intervene because the taxes are too high. These products are 5% basic duty, basic custom duty, 5% agriculture infrastructure development duty, development cess, 10% social welfare cess, over and above 11% import duty. See, because of all these things, the industry is suffering a lot, and thereby Government of India, Tamil Nadu has requested, the Chief Minister has written last week, to remove 11% import duty on cotton, to reduce the minimum lot size of 500 bales, which is sustainable to MSME. The third one is extend 5% of interest subvention to spinning mills towards procurement of cotton during peak season. These are the three demands made by Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. So kindly see that all these textile industries are saved. I request the senior minister here would kindly respond to this the request made by Chief Minister of Tamil Nadu. It is better to intervene, sir. Sir, it is. No, you are here. You intervene the wrong time. Sir, it is the most important issue. It is providing lot of employment opportunities. No, I'm very grateful to my good friend and senior colleague for highlighting the important contribution of Tamil Nadu in the textile sector. In fact, the government. माननीय मंत्री जी, एक बात बताइए, आपने उनके डायरेक्शन माने? रिक्वेस्ट मानी। प्लीज, पीयूष गोयल जी। सर, दो मित्र बोलते हैं तो फिर मानना पड़ता है, क्या करें? It's a pleasantry, sir, appreciated. Sir, in fact, the government of India also has been proactive in supporting the industry in Tamil Nadu. In fact, we are very proud of all our craftsmen, all our weavers, all the small MSME sector industries in Tirupur, Coimbatore and Madurai and many other places in Tamil Nadu. They are doing some very good work. The Honorable Minister has raised certain issues which directly don't come under us. We are not able to respond to specific points that the Honorable Chief Minister has raised. We'll consult with the relevant ministries, but issues like import duty, GST, all of these have to be seen in a much wider perspective. Now, when we look at import duty, for example, import duty also is a tool which helps our farmers. Now, our effort is that our cotton farmers get a good value for their produce. And to protect the farmers at times, it is necessary to provide import duty protection so that imported goods do not flood the market and affect the remuneration that the farmers get. I think the whole House is agreeable that our responsibility to upliftment of farmers, doubling farmers' income is a collective responsibility of the nation and all of us members in this august House. So we are always trying to balance the different stakeholders, bring fair play. International prices of cotton and yarn are currently at high levels, and market also is absorbing those high levels. In the process, our farmers are getting a good value. After many years
farmers are getting these kind of values, 6,500, 7,000 rupees per quintal. It's a great support to the farming community, to the farmers. And therefore, I think at this stage, we are making every effort, balancing all stakeholders. But I can assure the member, honorable member, that the government is in continuous dialogue with all the stakeholders. As honorable minister, my colleague said, very recently we met with all the entire value chain in the cotton industry, yarn makers, traders, everybody. Prices are stable. I have the exact details if you want. I can read it out also, but I can assure you that in the last 1 month or so, after that meeting, prices are on a downward trajectory, which will support the upstream industry, the apparel manufacturers and all, but in a very small band, so that our farmers also do not face the stress of not getting a suitable remuneration for their produce. Shri K. Subaryan. Shri K. Subaryan. Thank you, sir. 23 NTC mills in India. If all are fully operationalized, they can produce the yarn for national consumption. Yarn can be exported too. This will generate employment also. Therefore, government will consider this question, sir. सर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है. जसवीर सिंह गिल. जसवीर सिंह गिल. सर पास. क्वेश्चन नंबर 148 श्री TN प्रतापन. यस सर, क्वेश्चन नंबर 148. प्रश्न संख्या 148. क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी विदेशी कंपनियों का डेटा है जिन्होंने देश में अपने औद्योगिक प्रचालन वर्ष 2014 से बंद कर दिए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अनेक विदेशी औद्योगिक प्रचालन बंद होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार के पास देश में विदेशी कंपनियों के वर्तमान औद्योगिक प्रचालनों से संबंधित कोई डेटा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास ऐसी विदेशी कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले औद्योगिक प्रचालनों का डेटा है जो मेक इन इंडिया योजना के प्रति आकर्षित हुई हैं और अब भी देश में ही प्रचालन कर रही हैं? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सोम प्रकाश, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री. माननीय सदस्य. सर, what are the government schemes and projects to employment generation under Make in India? Sir, Make in India scheme was launched in September 25, 2014 and focuses on 27 sectors of the economy. And DPIT is coordinating action plans for 15 manufacturing sectors with the Department of Commerce is coordinating with 12 service sectors, sir. प्रश्नकाल समाप्त. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.